Namaste everyone and welcome to Supercrats Cat. Today we'll be discussing a very important area of your preparation which is the mock taking strategy. Now let me be very clear, ये एक बहुत specific session होने वाला है with regards to mock taking, which would mean कि when you appear for mocks, जब आप मॉक के लिए अपियर करेंगे तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. So this is not going to be a session on mock analysis. There will be a separate session where I'll discuss the analysis and the way to improve your mock scores on the basis of analysis that you have done. This session is specifically with regards to what is it that you're expected to do when you're appearing in mocks, maybe before that and during the mock. So start karte hain. There are broadly 6 points that I've covered. First point being stage of preparation. So a lot of you might be at a different stage of your preparation. हो सकता है some of you might have started 6 months ago, some of you might have even started 1 year ago, and some of you might have started just 1 month or few days ago. Doesn't matter the stage of your preparation. It is very important that you appear in mocks. Why? Because one, mock appear करके एक स्टेमिना बिल्ड होगा विथ योर एबिलिटी टू हाइपर फोकस फॉर 2 hours. बिलीव मी, स्क्रीन के सामने 2 घंटा फोकस तरीके से बैठ पाना itself is a huge challenge. So it becomes very important for you to develop that kind of a stamina. तो आपकी कोई भी प्रिपरेशन की स्टेज चल रही हो, doesn't matter, मेक श्योर कि आप मॉक्स रेगुलरली दें. फ्रीक्वेंसी अपनी प्रिपरेशन और स्टेज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, बट मेक श्योर दैट यू अपीयर इन मॉक्स. सेकंड, जिन्होंने जस्ट अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उनके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह एक मॉक हो सकता है वेर यू अंडरस्टैंड currently without any preparation where do you stand. So the first point is irrespective of your preparation, make sure that you appear in mocks. Frequency का change हो सकता है. For those who are very well prepared, your frequency can be higher. For those who have just started, your frequency can be lower. तो आप कम mocks दे सकते हैं, but please mocks देना ना छोड़ें. Second important point is a predetermined strategy. जब भी आप मॉक्स के लिए अपियर करने वाले होंगे उसके पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव a predetermined strategy in mind that these are few things that I'm going to try. And this is very different from what will happen in CAT on the D-Day. For CAT on the D-Day, I'll say that please have this ability to think on your feet. पहले से अपने preconceived notions ना लेके जाएं. But अभी मॉक में it is a good idea to experiment few things. बिकॉज अगर अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड व्हाट इज दैट वन स्ट्रैटेजी दैट फिट्स यू द बेस्ट. तो बहुत लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहता है कि सर शुड आई टेक अप आरसीज फर्स्ट और शुड आई टेक अप वीए, शुड आई look at all the sets in DLR and then take a call, or should I solve DLR sets as they come and then take a call if a set is difficult to skip it. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैन नॉट बी जनरलाइज फॉर एवरीवन एंड बी गिवन आंसर्स कि यही सही है ये गलत है. टू ईच हिज ओन, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, यू आर वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज व्हाट वर्क्स फॉर यू बेस्ट. और इसलिए सबसे अच्छा तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का इन मॉक्स. मॉक्स आर द बेस्ट वे टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट. एंड जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट, while your net practice is going on, let's take the example of cricket. India just won the World T20 final. Just like the example of net practice में आप अलग अलग shots try कर सकते हो कि can I play the reverse sweep, can I play the scoop over third man. ये सब आप net practice में try कर सकते हो and then take a call whether to do it on the D-Day or not. Same is the case with mocks. Mocks में आप अलग अलग चीजें try करें, try and see what works best for you and then take a call. So broadly, these are the two things that are very important when it comes to mocks. One is making sure that you have a predetermined thought process ki this is what I'm going to try today. Let me see how it goes. The third point is with regards to VRC section. तो अब हम specifics पे चलते हैं कि while appearing in mock, what is it that you are expected to do when you are appearing in a mock. VRC section में make sure that you try different things. Sometimes try solving RCs first, sometimes try solving VAK questions first. Experiment on your own and then take a call. One good thing that I strongly recommend for a lot of people is a good warm up before the actual mock. What do I mean by warm up? आप actual mock देने के पहले घर से एक RC, if you are going to a center and appearing in mock, if you are appearing in mock from your home, doesn't matter. Before actually clicking on start for the particular mock, make sure कि आप एक आर्टिकल
बहुत फोकस तरीके से पढ़ के जाएं। थिंक ऑफ इट एज अ वार्म अप कि एक्चुअल में अगर ये आरसी आ जाता तो आप किस इंटेंसिटी से पढ़ते, उसी इंटेंसिटी के साथ आप घर से एक आर्टिकल पढ़ के जाएं। इट वर्क्स रियली वेल फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. Try it out for yourself if it works for you. If possible, try out an actual RC and attempt all the four questions. No need to check the answers because हो सकता है चारों गलत चले जाए तो मॉक स्टार्ट होने के पहले ही डिमोटिवेशन हो जाए. Before you actually start a mock, do a warm up of solving one RC or maybe one para summary का question or one para jumble का question, so that you get into that zone जहां पर you are clear that you know this is how I'm going to appear in mock with the same intensity with which I solved the previous question. Then comes the part of deciding and skipping. अच्छा, मॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई reiterate this point at the last that please make a good note of whatever you are doing while you are appearing in mock. What do I mean? Please do make a good note. आप अपने आंसर्स के रीजंस अगर लिख पाए, फॉर एग्जांपल एक आरसी कर रहे हैं, आरसी के थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपने बी मार्क करा है, तो आपने बी क्यों मार्क करा है? बिकॉज ए एंड सी वेयर वीकर, या ए हैड एन ऑप्शन लाइक ऑलवेज विच वाज वेरी स्वीपिंग जनरलाइजेशन सॉर्ट्स वाला ऑप्शन. ऐसा कुछ ना कुछ पॉइंटर आप लिख के रखें, या एटलीस्ट लिख के रखें दैट यू आर कंफ्यूज बिटवीन बी एंड सी एंड देन यू चोज सी, सो दैट जब एनालिसिस का टाइम आएगा यू विल हैव दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड कि आपने कौन सा ऑप्शन किस रीजन से मार्क करा था. बिलीव मी, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं जब एनालिसिस करते हैं कि मैंने यहाँ ऑप्शन मार्क ही क्यों करा, मुझे तो अब तो क्लियरली लग रहा है कि बी आंसर है, उस टाइम पे पता नहीं क्यों सी मार्क कर दिया था. ये अगर होगा तो आपकी एनालिसिस पे इम्पैक्ट आएगा और आपका इंप्रूवमेंट कभी नहीं हो पाएगा. सेम इज द केस विद पैराजम्बल. ट्राई एंड लिंक द मैंडेटरी पेयर इन द रफ शीट इटसेल्फ सेइंग कि 4 के बाद 3 आना चाहिए था, ये आपने पहले लिखा है और उस कारण से आपने 4-3-2-1 या 4-3-1-2 जो भी ऑर्डर आपने बनाया है वो बनाया है. सो ट्राई एंड सी whatever you are doing in the mock is getting written in your rough sheet in the notepad that you are using. It's very, very important. Similarly, try and share your feeling in the rough notes itself that you know the first RC was super difficult and I felt irritated and intimidated by it. I immediately shifted to second. So that again जब analysis वाला part आएगा तो you will know कि इस RC ने परेशान करा था, इस पैराजम्बल के क्वेश्चन ने परेशान करा था. सो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस सच सिमिलर क्वेश्चंस बेटर व्हेन यू डू एनालिसिस. नेक्स्ट मूव करते हैं डीएलआर सेक्शन पे. एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के सामने रहता है कि सर शुड वी ग्लांस द एंटायर क्वेश्चन पेपर एंड देन पिक अप सेट्स और शुड वी गो सेट बाय सेट. So if you go by the last 3 years paper, understand that you have this option at the right top to view the question paper of the entire section. For DLR section, that will be strongly recommended कि आप मॉक्स में ट्राई करके देखो. If it works for you, well and good. If it doesn't, you can always follow what you wish to. तो राइट हैंड साइड टॉप में एक व्यू एंटायर क्वेश्चन पेपर करके ऑप्शन रहता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं रहता कि ऐसा ऑप्शन भी है. तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो क्लिक ऑन इट, ग्लांस थ्रू ऑल द 4 सेट्स. आप चारों सेट्स को बहुत अच्छे से ग्लांस कर लो. वंस यू हैव ग्लांस्ड ऑल द 4 सेट्स, देन डिसाइड विच इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दैट यू आर गोइंग टू फॉलो. आपका सबसे इजी कौन सा लग रहा है, सेकंड कौन सा ट्राई करोगे, फिर थर्ड और फिर फोर्थ प्रायोरिटी कौन सा सेट होगा. एंड आई एम श्योर कि अगर आपने अभी तक एक भी मॉक दिया है तो यू वुड नो दिस फॉर श्योर कि चारों सेट सॉल्व करना तो शायद कभी किसी मॉक में पॉसिबल हो ही ना, बिकॉज एक्चुअल कैट में तो वो आज तक नहीं हो पाया है. तो आपके बेस्ट पॉसिबली 2 सॉल्व हो पाएंगे और तीसरे का कुछ पार्ट शायद हो पाएगा इफ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. इफ यू आर एन एवरेज अब एवरेज स्टूडेंट, आपने एक सेट सॉल्व कर लिया, बहुत बड़ी बात है. तो एक सेट वो कौन सा हो इज वेरी important for you to determine. It's a good way to analyze all the four sets in one go by looking at that question paper. What are the parameters? One is obviously familiarity. आप familiarity चेक करें कि क्या आपने पढ़ाई करते टाइम ऐसा कुछ सेट देखा हुआ है. आर यू कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज. सेकेंड विल बी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लूज. क्या क्लूज ऐसे हैं जो आप बहुत इजीली इंटरप्रेट कर पा रहे हो. क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चंस में. अगर क्वेश्चंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मतलब वो सेट शायद पूरा सॉल्व ना हो. क्वेश्चंस की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, विच मीन शायद और टाइम कंज्यूमिंग हो, डिफिकल्ट टू सॉल्व हो. सो दीज आर ब्रॉडली सम पैरामीटर्स दैट विल हेल्प यू असेस. ऑल्सो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इफ यू फील आफ्टर रीडिंग द क्लूज that you know these are some of the sets that will have definitive answers going ahead because चारों options
डेफिनेट है और ऑप्शंस का यूज करके केसेस बनाना इजी रहेगा। तो पिक सम ऑफ दो सेट्स जिसमें चारों ऑप्शंस डेफिनेटली डिफाइंड है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दीज टाइप के ऑप्शंस नहीं है, because then you can make use of options to fit in some of those cases. So DLR के लिए I think some of these strategies will work really well. Coming to QA section, my strong recommendation will be, and you can try this in your mocks, which is to go question by question, decide on the level of difficulty, and go through one cycle, completing all the questions. So when I say completing all the questions, I'll want you to attempt 100% of questions in QA. You might say, sir, it's a joke, 100% attempt तो हो ही नहीं सकते, 22 questions कैसे होंगे? So when I say attempt, I'm not saying marking the answer, marking the radio button. I'm not saying that. I'm saying attempting would mean आपके 22nd क्वेश्चन तक का सीक्वेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए अटेम्प्ट्स के फॉर्म में, इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस दैट यू स्किप्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा, अगर आपको लग रहा है ये डुएबल है, परसेंटेज टॉपिक का है, प्रॉफिट लॉस का है, आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग है, क्वेश्चन का टाइप देखा हुआ है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो 2 3 4 मिनट में, आप उसे सॉल्व करो, मार्क द आंसर एंड मूव ऑन। सेकंड क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, दैट इज नॉट योर एरिया, इमीडिएटली स्किप इट विद इन 5 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। दिख रहा है ज्योमेट्री है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 फंक्शन ग्राफ का है, डिफिकल्ट लग रहा है, देखते से छोड़ दिया। डू दिस इन द फर्स्ट राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट राउंड में आप अगर 5 या 6 क्वेश्चन भी कर पाते हो, ऐसे 4 क्वेश्चन भी कर पाते हो, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। लेट्स अज्यूम दैट यू टेक 25 मिनट्स के आसपास का टाइम फॉर द फर्स्ट राउंड, एंड दोस 25 मिनट्स यू आर एबल टू गेट दोस 4 5 क्वेश्चंस विच आर सिटर्स, विच आर एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस। ये राउंड 1 में आपके सारे इजी वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द 22 क्वेश्चंस। इसी दौरान इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मार्क द क्वेश्चंस फॉर रिव्यू दैट यू आर गोइंग टू कम बैक लेटर। सो फॉर एग्जाम्पल नंबर थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता है और आपको लगता है नंबर थ्योरी आपने काफी प्रैक्टिस करा हुआ है, बट अभी टाइम लेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, यू कैन मार्क इट फॉर रिव्यू, एंड सेकेंड राउंड में आप सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस पे आओगे। सो इमेजिन ऑटोमेटिकली आपकी थर्ड कैटेगरी बन गई, विच इज कि जिन क्वेश्चंस पे आप कभी आओगे ही नहीं फर्स्ट राउंड के बाद। फर्स्ट राउंड में एक लेवल के क्वेश्चंस हो गए, और सेकेंड राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मार्क फॉर रिव्यू आपने मार्क कर रखा है। Also, make sure that you make good use of options. Read the questions very, very carefully. So QA section में it's essential that you go question by question. First question देखा, लग रहा है बनने लायक, कर दिया वहीं के वहीं सॉल्व, आगे बढ़ गए। अगर लग रहा है नहीं बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कर दिया, सेकेंड क्वेश्चन स्किप कर दिया। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, a lot of times you might have this feeling कि स्टार्टिंग के 3 4 क्वेश्चंस बने ही नहीं है, 5 क्वेश्चंस बने ही नहीं है, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस यू हैव स्किप्ड बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। पहला क्वेश्चन देख रहे हो, डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दिया, दूसरा डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दिया, छोड़ते जा रहे हो। पैनिक नहीं करना है, हो सकता है आखिरी के 18 19 20 3 क्वेश्चंस बहुत ईजी हो, और ये बहुत जम्बल्ड अप रहता है इन एक्चुअल कैट एज वेल। हर किसी का पेपर में क्वेश्चन का ऑर्डर अलग रहेगा, तो हो सकता है किसी के लिए स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन इजी आ जाए, उसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव बने, वो अच्छा स्कोर कर ले, और आपके पेपर में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस वर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट वर रैंडमली थ्रोन टू यू। पेपर में 22 क्वेश्चंस वही हैं, बट ऑर्डर चेंज होता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दिस कैपेसिटी एंड मेंटल टेम्परामेंट टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हो सकता है कि टफ आ रहे हो, स्किप करते जाना है, एंड में जाके करेंगे। So I hope individual sections की strategy भी clear है। Now we come to the part on notepad and pen। एक बहुत बड़ा रीजन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत फिनिकी रहते हैं, उनके कैट का पेपर खराब होने का रहता है कि सर जब हम एक्चुअल मॉक्स दे रहे थे तब वी वर गेटिंग A4 शीट से अपनी हम रफ कॉपी में सॉल्व करते थे, नोटबुक में सॉल्व करते थे, विच वॉज प्रिटी लॉन्ग। कैट में जो एक्चुअल पेपर मिलता है वो मिलता है नोटपैड के फॉर्म में, जिसका साइज कैन बी दिस मच, your hand, your difference between your thumb and the smaller finger। तो टिपिकल स्मॉलर साइज का नोटपैड मिलता है, और उसके पेजेस कई बार डीएलआर का सेट करोगे तो आपको पेजेस चेंज करने पड़ेंगे एक सेट को सॉल्व करने में। माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन विल बी कि आप हर मॉक के लिए एक अलग नोटपैड लो, टिपिकल 16 पेजर 8 पेजर छोटा सा नोटपैड जो आता है, और उसके ऊपर टाइटल लिख के रखो, दिस इज फॉर मॉक 1 मॉक 2 मॉक 13 मॉक 15। जब आप वो मॉक लो तो साथ में पेन भी थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का पेन लें, ₹2 ₹3 ₹4 वाला पेन, because a lot of times students get bothered by these small little things
कि सर साल भर तैयारी करी, अब वो वाला पेन तो कैट अथॉरिटीज अलाउ ही नहीं करती। वो अपने सेंटर पे अपना पेन देंगे, वो अपने सेंटर पे नोटपैड देंगे। वो नोटपैड के साइज और पेन की क्वालिटी affects a lot of students. These are silly things, sir. These should not matter. But just like for a sportsman, the batting gear or the bowling, gear that he has can impact a lot. कीपर के लिए उसके ग्लव्स इम्पैक्ट कर सकते हैं, शायद आपके लिए वो नोटपैड और पेन इम्पैक्ट कर सकता है। आई डोंट नो, आई डोंट गेट अफेक्टेड अलॉट, बट देन मेरे लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है उस एग्जाम में बहुत अच्छा करना। बट फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दी स्मॉल नोटपैड एंड पेन वाली चीजें इम्पैक्ट करती हैं। डेवलप दिस हैबिट कि वो छोटे साइज के नोटपैड में आप इंडिविजुअल मॉक लिखोगे। इट कैन बी अ गुड थिंग फॉर यू टू रिविजिट योर मॉक्स लेटर एज वेल। तो जब आप मॉक्स को रीएनालाइज करोगे, बाद में देखोगे, तो आपके हर मॉक की इंडिविजुअल डिफरेंट नोटबुक बनी रहेगी। कई बार यू विल ऑल्सो गेट दिस फीलिंग कि सर सफिशिएंट लग रहे हैं नहीं लग रहे पेजेस, तो वो 16 पेज का छोटा नोटपैड और 1-2 रुपए का पेन, please make sure that you try writing mocks using that. It will help you get accustomed to the actual look and feel of the CAT exam. So broadly, these are the things that you can look up to when you are appearing in mock. Grammatically, please share in the comments whether mock taking is the right phrase, but because Google keywords write this as the most important phrase, we have taken mock taking. But please share in comments कि क्या mock taking एक सही expression है, या appearing in mock is the right expression. Can you take mock? Can you give mock? और can you appear in mock? Out of the three, कौन से या कौन कौन से correct expressions हैं? Thank you for watching this video. I think I'll take a leave now. Thank you.